आओ दोस्तों ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ आशीष कांत शर्मा जी जो कि USA पढ़ा के आए ने ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Okay, everyone. So when we talk about English language and when we especially talk about learning an English language, so you are supposed to understand how it is actually learned in India and how it should be learned in the real sense, in a natural way. In India, English language learning starts with reading. The teacher comes to the class and starts writing something on the board and says A, B, C. This is how it starts from a preschool. You understand preschool? Okay? So, the child is made to look at the words written on the board or the letters written on the board and they are supposed to pronounce them. They are supposed to pronounce those words like A, C-A-T, cat, R-A-T, rat, B-A-T, bat. This is how it goes on in India. Do you think this is the right way to start learning a foreign language? Not at all. Whatever language you want to learn, you should know the natural way or path to become accomplished in that particular language. Did you learn Punjabi grammar or Hindi grammar when you were 3 years old? Did you learn Punjabi grammar when you were 3 years old? 2 years old? No. You never learned Hindi or Punjabi grammar when you were a small kid. Before entering a school, you never learned any grammar. You never joined any school to learn Punjabi, to learn Hindi. तुसी किसी स्कूल को ज्वाइन नहीं किया, आपने किसी स्कूल को ज्वाइन नहीं किया, ओके? ठीक है? आपने हिंदी और पंजाबी बोलना मतलब सीख लिया था जब आप बहुत ही छोटे थे, 2 साल के, 3 साल के। आपने भी स्कूल नहीं मतलब ज्वाइन किया, बट आप पंजाबी और हिंदी अच्छे से बोल लेते थे। वो कहाँ से सीखा आपने? पंजाबी हिंदी कहाँ से सीखी? इंग्लिश के लिए आप क्लासेस अटेंड करते हो, इंग्लिश के लिए आप कोर्सेज अटेंड करते हो, बट पंजाबी के लिए, हिंदी के लिए आपने कुछ अटेंड नहीं किया। Why? Because it was all around you. Punjabi was all around you, Hindi was all around you, everybody in your contact, everybody in your relation, everybody who was around you spoke and used Punjabi or Hindi language. You acquired it. You didn't learn it. You acquired it from your surroundings, from the atmosphere you spent your time in. जहां पे आपने अपना समय गुजारा, उसके सराउंडिंग्स में जो लैंग्वेज चल रही थी उसको आपने एक्वायर कर लिया। एक्चुअली द लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज स्टार्ट फ्रॉम द वूम ऑफ अ मदर। When you didn't take birth, even before that particular time, when you were in the womb of your mother, जब आप अपने माँ के पेट में थे, वहां से वो साउंड्स जो हैं आप रिसीव करते हैं, आपने किए हैं, और जब आपने जन्म लिया उसके बाद आपने उसको प्रैक्टिस में लाना शुरू किया। जब एक छोटा बच्चा होता है ना, जब आप उसको बोलते हो, छोटा बच्चा है 2 महीने का, 3 महीने, 4 महीने, आप ये मत समझना कि वो आपको समझ नहीं रहा, वो समझ रहा है, पर उसकी वोकल कोर्ड्स अभी डेवलप नहीं हुई कि वो कुछ बोल सके, इसलिए वो सिर्फ चिल्लाएगा। वो चिल्लाना, वो साउंड, वो जो वो रोता है, वो जो बोलता है, वो सारे साउंड शब्दों का रूप ले लेते हैं धीरे धीरे। After he gets like 1 year of age, 2 years of age, he starts uttering some words, some sentences. ऐसे ही एक बच्चा जो इंग्लैंड में, अमेरिका में और कनाडा में पैदा हुआ, उसको भी ग्रामर नहीं आती। If I write some word on the board, आपने देखा होगा 3 साल का बच्चा जो अमेरिका में पैदा हुआ है, वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, बोलता कि नहीं बोलता? उसने ग्रामर सीखी? नहीं, उसने अपनी सराउंडिंग में से लैंग्वेज को एक्वायर किया। मैं एक वर्ड बोर्ड पे लिख रहा हूं अभी, आपने मुझे उसको प्रोनाउंस करके बताना, ठीक है?
कोई इस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकता है? AIDONWANTIT. I don't want it. I don't want it. Actually, it is not a word. This is how you have to understand that language is never learned word to word. जो चीजें आपको मैं बता रहा हूं, actually, they are very very important, है ना? अभी हमने लेसन स्टार्ट नहीं किया. अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई लैंग्वेज एक्चुअली सीखनी कैसे चाहिए, हम कैसे सोचते हैं. यू हैव टू चेंज द वे यू थिंक अबाउट लर्निंग अ लैंग्वेज. जो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं या जिन स्कूल्स में हम पढ़ते हैं उन्होंने हमें बताया है, जरूरी नहीं है कि वो सब सही है, और जो मैं बता रहा हूं जरूरी नहीं है कि ये भी सही है. यू हैव टू यूज योर ओन ब्रेन, योर माइंड to see and to understand what is right and what is a wrong way to learn a language. हम language learn करने आए हैं और especially we are talking about spoken English skill. Why is spoken English skill important? I don't need to make you understand that. मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश हमें क्यों सीखनी है. इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसने पूरे वर्ल्ड को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है. इंग्लिश इज डोमिनेटिंग ऑल द लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड. आपने किसी जॉब इंटरव्यू में जाना है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, यू विल बी आउट. अ बेटर इंग्लिश स्पीकर विल बी हायर्ड इन प्लेस ऑफ यू. वाईएस में मैंने पढ़ाया है. पूछना किसी टीचर को, आशीष कांत शर्मा, किसी पुराने टीचर को पूछना, आशीष कांत शर्मा, अंडयार में भी पढ़ाया मैंने, बरनाला में भी पढ़ाया. ठीक है. सो आई टॉट इन वाईएस स्कूल इन 2002. मेरा पहला स्कूल वाईएस स्कूल था. 2002 में मैं वाईएस स्कूल में पढ़ाता था, आज से 20 साल पहले. प्रोफेसर दर्शन नोज मी वेरी वेल. भारती जो है वो उनके जो बेटे इन नोज मी. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि ये जो आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है एक्चुअल में वर्ड नहीं है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम वर्ड्स. इट इज एक्चुअली वन सेंटेंस. आई डू नॉट वांट इट. तो देखा आपने कितने वर्ड्स हैं इसमें? आई डू नॉट वांट इट. 5 वर्ड्स आ रहे है ना. तो मैंने आपके सामने ये क्लियर किया. तो एक्चुअली क्या है, लैंग्वेज को ऐसे ही सीखा जाता है. जो एक अमेरिकन बच्चा है, जो हम उसको पूछें कि लाइक वो इंग्लिश तो बोलता ही है ना. अमेरिकन बच्चा इंग्लिश बोलेगा. ठीक है. तो वो कहेगा मामा पिक मी अप. मामा पिक मी अप. I wanna go there. So आप उसको पूछो कि पिक के स्पेलिंग क्या होते हैं. एक 2-year-old किड को, अमेरिकन किड को आप पूछो कि पिक के स्पेलिंग बताओ मुझे. आई एम डैम श्योर दैट ही वोंट बी एबल टू राइट द स्पेलिंग्स ऑफ पिक ऑन द बोर्ड व्हिच ही यूजेस डेली. ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, ये तीनों चारों स्किल्स सारी डिफरेंट हैं. ये आपस में कनेक्टेड जरूर है बट ये अपने आप में इंडिपेंडेंट भी हैं. सो पिक के स्पेलिंग बच्चा नहीं बता पाएगा. बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. डू यू हैव अ चाइल्ड मैम? गुड. तो कौन सी क्लास में पढ़ता हो? 8th से. ठीक है. जब वो बच्चा मतलब 2 साल का था, ठीक है, तो पंजाबी अच्छी बोलता था, है ना. तो पंजाबी में बहुत सारे वर्ड्स बोलता होगा. वो पंजाबी में उसने बोला होगा मम्मा मैंने वो लेके आना है. और सॉरी, पंजाबी में मम्मा मैं वो लेके आना, मम्मा मैं वो दबा दे. जो किसी लोग कहते, आपने मान लो उसको पूछा दबा दे लेके दिखा, तो वो लिख सकता था. उसको तो पेंसिल भी पकड़नी नहीं आती, बट ही यूज द वर्ड्स. तो मैं एक्चुअली आपको ये बताना चाहता हूं, जो लैंग्वेज है इट इज लाइक दिस. लुक एट दिस पिरामिड. तो इसके मतलब 4 पार्ट्स हैं. The biggest part is listening. The second biggest part is speaking. Third biggest part is reading. And the last or the smallest part is writing. So this is the natural way a language is used and acquired and spoken, whatever you can say. You listen a lot. आप देखो आपके कान खुले, सुन रहा ना आपको, 24 घंटे सुनते हो. कई बार सोते हुए भी कुछ सुन लेते हो, कुछ साउंड्स आपको आ जाते हैं. जनरेटर चल रहा है उसका साउंड आ रहा है, एसी चल रहा है इसका साउंड आ रहा है. तो ये अलग अलग साउंड्स हम सुनते हैं. बट
जो लैंग्वेज उसको हम बोलते हैं पंजाबी और हिंदी, वो लैंग्वेज भी हम सुनते हैं। सबसे ज्यादा हम सुनते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं। अपनी जिंदगी का लिसनिंग से ज्यादा कम हिस्सा हम स्पीकिंग में लगाते हैं, उससे भी कम हिस्सा रीडिंग में लगाते हैं, और लास्ट में राइटिंग करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यू रीड न्यूज़पेपर्स, यू रीड लॉट ऑफ बुक्स। कितनी किताबें पढ़ते हो आप? अब पेपर में क्या करना होता है? 3 घंटे में लिख के आना है। 3 घंटे की तैयारी के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ता है? बात समझ रहे मेरी? तो लैंग्वेज स्किल जो है वो इस तरह से चलती है। ये नेचुरल प्रोसेस है। सबसे पहले लिसनिंग होनी चाहिए थी, जो स्कूल्स में नहीं हुई। आज कई स्कूल्स इंप्रूव कर रहे हैं। They have started giving a good listening practice to their kids from preschool. बच्चा स्कूल में किंडरगार्टन में एंटर करता है, वहां से उसको लिसनिंग स्किल मिलती है। फिर टीचर इंग्लिश बोलने वाला है या उनके पास कोई लैंग्वेज लैब है जहां वो उनको लिसनिंग की प्रैक्टिस देते हैं। भाई इंग्लिश के वर्ड्स को, सेंटेंसेस को ऐसे बोला जाता है, तो वो सुनते हैं। सबसे पहले सुनना जरूरी है। कैन यू प्रोनाउंस अ वर्ड विच यू हैव नेवर हर्ड? मैं रिपीट कर रहा हूं, कैन यू प्रोनाउंस अ वर्ड विच यू हैव नेवर हर्ड? कोई ऐसा वर्ड आप प्रोनाउंस कर सकते हो जब आपने कभी सुना ही नहीं उसको। आपने कोई चीज सुनी नहीं, उसको प्रोनाउंस कैसे करोगे? उसके बाद में सोच नहीं सकते आप। प्रोनाउंस तो बहुत दूर की बात है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपके कानों में एक साउंड गया, जैसे आशीष, जैसे कंट्रोल, जैसे फैन। तो ये फैन 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 बहुत बार आपके दिमाग में, आपके कानों के थ्रू क्या होगा? तो वो आपने जब टंग पे लेके आए उसको, तो वो स्पीकिंग बन गई। तो मतलब साउंड जब तक रिसीव नहीं होगा ना, तो आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। क्योंकि इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव स्किल। ये कौन सी स्किल है? प्रोडक्टिव स्किल। ये प्रोडक्टिव स्किल है, और ये भी प्रोडक्टिव स्किल है। इंग्लिश में 3-4 तरह की स्किल्स हैं टोटल में। सो 1, ये वाली जो राइटिंग आप देखते हो, जो बहुत कम करते हो आप। स्पीकिंग भी बहुत कम करते हो आप। ये दोनों प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। लिसनिंग भी बहुत कम हो रही है। इंग्लिश की लिसनिंग की बात कर रहा हूं मैं। ये बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल। रिसीव वर्ड से बना हुआ है, ये रिसेप्टिव स्किल है, और रीडिंग भी रिसेप्टिव स्किल है। यानी कि हम जो है लैंग्वेज को पहले रिसीव करेंगे। जब आपने कुछ रिसीव ही नहीं किया, आप प्रोड्यूस क्या करोगे? सोचो, एक फैक्ट्री आपने लगा ली, आपने मतलब जो है सपोज शुगर प्रोड्यूस करना है ना, आपके पास शुगर केन ही नहीं है, तो आप शुगर कैसे प्रोड्यूस करोगे? तो ये जो आपकी जो रीडिंग है, लिसनिंग है, ये आपका शुगर केन है। ये आपके पास होगा तो आप कुछ प्रोड्यूस करने की सोचोगे। फॉर एग्जाम्पल शुगर इन दिस केस। तो वैसे ही जो रीडिंग के वर्ड्स हैं वो आपको राइटिंग सिखाते हैं, क्योंकि रीडिंग किसी की तो राइटिंग है ना, किसी की तो राइटिंग होगी ना, वो इसीलिए वो आपके लिए रीडिंग बन गई है। जिसने लिखा है उसके लिए वो तो राइटर हो गया, और जो पढ़ेगा वो रीडर हो जाएगा। तो आप किसी की राइटिंग को, किसी की प्रोडक्शन को रिसीव करेंगे। किसी की प्रोडक्शन मीन्स किसी की राइटिंग, उसको आपने रिसीव किया। उसके बाद रिसीव करने के बाद क्या करोगे? उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे, और वो बहुत कम लोग करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम है। आप रिसीव तो बहुत कुछ कर रहे हो, यूट्यूब पे सुन तो बहुत कुछ रहे हो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यूट्यूब में सुनने से हम इंप्रूव कर जाएंगे। तो फिर तो भाई सब जो है, अब तक तो है ना, सभी बहुत फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स बन जाते, सभी पब्लिक स्पीकर्स बन जाते। ऐसा नहीं होगा। तो अकेला सुनने से कुछ नहीं होगा, हेल्प करेगा वो, बट आपको प्रोड्यूस करने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, आज से जो हम करेंगे वो हम प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, रिसीव भी करेंगे, क्योंकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी हम बताएंगे, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, दोज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर एकेडमिक्स एंड इन योर प्रोफेशनल लाइफ लेटर। बिकॉज जो पार्ट में आपको जितना करवाऊंगा, इंग्लिश की ग्रामर तो बहुत वास्ट है। सो इफ आई से कि मैं आपको ये भी करवा दूं, वो भी डिटेल में करवा दूं, वो भी करवा दूं, ऐसा नहीं होगा। 5 उंगलियां बराबर नहीं है, अलग अलग साइज है इनके, ठीक है? तो लैंग्वेज में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे फोकस ज्यादा करना होता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे फोकस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं है। मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करवाता रहूं, जो कभी कोई यूज ही नहीं करता, उसका क्या फायदा? कोई फायदा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम सुनने में बहुत बड़ा है, उसको प्रैक्टिस करते हो। मैंने तो पढ़ा नहीं जिंदगी में कभी, 20 साल हो गए मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए,
ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें प्रैक्टिस में नहीं देखने को मिलती, और जो चीज प्रैक्टिस में नहीं है उसका हमने यूज भी क्या करना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमने उतना ही करवाना है आपको जो आपकी जिंदगी में काम आएगा। और आई एम टेलिंग यू देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ 6th क्लास स्टूडेंट एंड 12th क्लास स्टूडेंट व्हेन इट कम्स टू हैव अ कमांड ओवर दिस लैंग्वेज। पंजाबी में, हिंदी में बताता हूं, एक 6th क्लास का स्टूडेंट है, एक 12th क्लास का स्टूडेंट है, जब इंग्लिश की कमांड की बात आती है, किसकी कमांड ज्यादा हो सकती है या है, उसमें उसकी एज और पढ़ाई मैटर नहीं करती, उसमें उसने क्या एक्वायर किया है और उसको कैसे इस्तेमाल किया है ये मैटर करता है। जो आपको पढ़ाया जाएगा सबको बराबर पढ़ाया जाएगा, पर कुछ उनमें से अच्छा इंप्रूव कर लेंगे, कुछ उसको सुन के घर में बैठ जाएंगे, उनकी इंग्लिश वैसी की वैसी रहेगी। इंग्लिश सुनने से इंप्रूव नहीं होगी, जो आपको बताया जाएगा उसको अप्लाई करना होता है। नॉलेज एक्वायर्ड विदाउट यूजिंग इट इज जस्ट लाइक यू कैन से कलेक्टेड वाटर इन अ पॉन्ड। तालाब में जो पानी इकट्ठा होता है ना, उसको यदि आप नहीं बदलोगे ना, वो स्मेल करने लग जाता है पूरी तरह से। जो नॉलेज आप एक्वायर करोगे ना, यदि आप उसको अप्लाई नहीं करोगे ना, तो वो स्मेल करने लग जाएगी, यानी कि किसी यूज में नहीं रहेगी आपके। तो रिवर का वाटर इज फ्लोइंग, तो उसमें कभी स्मेल नहीं आती। तो इसका मतलब कि जो नॉलेज आप एक्वायर कर रहे हो उसको फ्लो में रखो, उसको इस्तेमाल में रखो, लेट इट गो ऑन एंड डेफिनेटली once, twice or thrice, if you try something again and again, you will definitely go through it, make it, achieve your goal. And learning a language, a foreign language, requires craziness. Craziness! You have to be crazy if you really want to learn this language. Sitting like as you're sitting now, as you're watching some movie in a theater, will never improve your English. जैसे थिएटर में मूवी देखने चले जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और देख ली मूवी और घर आ गए, है ना, थोड़ा सा स्टोरी याद रही, पूरी तरह भूल गए, तो वैसे ही होगा। आपको जो चीजें सिखाई जाएंगी यहाँ पे हम उसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। The first half an hour I will discuss a particular concept with you which is directly related to your spoken English skill, right? And definitely it will help you in writing also. जो मैं आपको करवा रहा हूँ, आपकी राइटिंग में भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। मतलब उसके अलावा आपको ग्रामर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइटिंग के लिए याद रखना, आपकी इंग्लिश टेस्ट कैसे होती है, आपकी इंग्लिश टेस्ट कैसे नहीं होती कि ये टेंस है जी इसको चेंज कर दो, ये एक्टिव है जी इसको वॉइस बना दो, पैसिव बना दो, ये नरेशन डायरेक्ट है जिसको इनडायरेक्ट बना दो, यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करके दिखा दो। इंग्लिश टेस्ट ऐसे नहीं होती, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल जो टेस्ट होते हैं इंग्लिश में, वहां पे इंग्लिश राइटिंग को टेस्ट करने के लिए व्हाट इज डन, आपको एक ऐसे दिया जाएगा, आपको एक लेटर लिखने के लिए बोला जा सकता है, आपको एक रिपोर्ट लिखने के लिए बोला जाएगा, उसमें आपको चेक कर लेंगे आपका लेवल क्या है। सो योर लेवल विल बी चेक्ड और इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन योर राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल। उसमें वो सब चेक कर लेते हैं, उसको आपको ऐसे दे नहीं देंगे इसमें ब्लैंक फिल करो, इसमें ये करो वो करो, वो सब किताबी बातें हैं। एक्चुअली उनकी प्रैक्टिस में हम 12 साल इंग्लिश पढ़ने के बाद IELTS कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। 12 साल की इंग्लिश काफी नहीं थी हमारे पास। 12 साल इंग्लिश पढ़ते हैं ना बच्चे, 12 साल, यदि कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो अपना फर्स्ट क्लास से लगा के अब 12वीं तक कोई इंग्लिश पढ़ते हैं। 12 साल इंग्लिश पढ़ने के बाद बच्चा यहाँ पे बैठ जाता है जी हमें ये इंग्लिश करा दो। इसका मतलब क्या है, 12 साल में उसने कुछ सीखा नहीं। इसका मतलब कहीं ना कोई फॉल्ट है, कहीं ना कहीं तरीके में प्रॉब्लम है, इसीलिए हम सीख नहीं पाए। सो आज हम स्पोकन इंग्लिश को स्टार्ट कर रहे हैं साउंड्स से। ये जो मैंने आपको चीज बताई है, इट इज ऑल अबाउट साउंड्स। आपको पता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ साउंड्स होते हैं, क्योंकि साउंड्स पे बेस्ड लैंग्वेज है ये, स्पेलिंग्स तो बाद में बने हैं। कोई मुझे बताएगा बच्चा आप में से कि थ्योरी पहले होती है कि प्रैक्टिस पहले होती है? थ्योरी और प्रैक्टिस में फर्क समझते हो आप? प्रैक्टिस और थ्योरी का फर्क पता है आपको सबको? थ्योरी क्या होती है, प्रैक्टिस क्या होती है? आप बता सकते हो कि थ्योरी पहले होती है कि प्रैक्टिस पहले होती है? थ्योरी पहले, प्रैक्टिस होती है। पहले कोई चीज प्रैक्टिकली होती है, उसके बाद वो किताबों में लिखी जाती है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सुना आपने? न्यूटन्स लॉ सुना है आपने? कोई चीज को ऐसे कोई इमेजिन थोड़ी करता है, कोई चीज होती है उसको फिर किताबों में लिखा जाता है। किसी ने इंग्लिश बोली, उसके बाद ग्रामर बनी। ग्रामर पहले नहीं बनती,
पहले इस्तेमाल होता है, चीजें इस्तेमाल हो रही है, सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद चीजें बनती हैं। सो प्रैक्टिस पहले होती है, और हम तो भूल ही गए प्रैक्टिस करना। हम तो रट्टे पे रट्टा, रट्टे पे रट्टा, रट्टे पे रट्टा, किताबें पढ़ते जा रहे, एक बंद कर दी दूसरी खोल, तो कभी प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस चीज का, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं साउंड्स की। देखो इंग्लिश लैंग्वेज हैज, इट्स दिस लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन साउंड्स। साउंड, ये जो चल रहा है ये सब साउंड है, जो हम समझ लेते हैं वो हमारी लैंग्वेज बनती है। साउंड तो बर्ड्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, साउंड तो एनिमल्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर उनकी हो सकता है कि आपस में कोई ट्यूनिंग हो, वो समझ रहे हो, हमें कुछ नहीं समझ आता। उनका भी वो साउंड, उनकी वो लैंग्वेज हो सकती है, बट वो लैंग्वेज हमारी समझ से बाहर है। एक चाइनीज आपके सामने आके बोलने लग जाए, आपके लिए तो साउंड है, आप कहां समझोगे उनको क्या बोल रहे हो। एक जापानीज आपके सामने बोलने लग जाए, आपके लिए तो साउंड है, उनके लिए वो लैंग्वेज है। जब आप उनकी लैंग्वेज को समझ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो वो आपके लिए भी लैंग्वेज बन जाएगी। अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस, तब तक आपको वो सिर्फ साउंड्स हैं, ठीक है। तो इसलिए जो साउंड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में कुछ साउंड्स हैं, आपको पता ही होगा। एक होते हैं वाउल साउंड्स, एक होते हैं कंसोनेंट। वाउल और कंसोनेंट साउंड्स। देखो एक कंसोनेंट्स होते हैं, एक वाउल्स होते हैं, अलग अलग चीजें। एक साउंड होते हैं, जब मैं कहूंगा वाउल साउंड, तो मैं वाउल्स की बात नहीं कर रहा, मैं साउंड की बात कर रहा हूं। वाउल साउंड, आपको पता है इंग्लिश जो ये A to Z है, ये क्या है A to Z? अल्फाबेट, पहली चीज अल्फाबेट्स नहीं है, मैं इसीलिए पूछा था। मेरे को पता है बहुत सारी चीजें हमने सीखनी है, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीखोगे। इसको अल्फाबेट्स नहीं कहते कभी भी, इसको अल्फाबेट कहते हैं। उसका कारण क्या है? ये जो है लेटर्स है। जब आप मुझे बोलते हैं ना कि ये लेटर्स हैं सर, 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, और आप क्या बोलोगे? ये अल्फाबेट्स हैं, ये प्लूरल नहीं होता। ये जो ग्रुप है इसको अल्फाबेट बोलते हैं, ये अल्फाबेट है। पंजाबी का अल्फाबेट है, हिंदी का अल्फाबेट है, इंग्लिश का अल्फाबेट है। जब ये तीनों को इकट्ठा कर देंगे तब हम अल्फाबेट्स कह सकते हैं। अदरवाइज इंग्लिश का ये एक अल्फाबेट है जो कि 26 लेटर्स का होता है। याद रखना, ये एक अल्फाबेट है, इंग्लिश का एक अल्फाबेट है जिसमें 26 लेटर्स होते हैं। आज से मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा। और इन 26 लेटर्स को हमने वाउल और कॉन्सोनेंट साउंड्स में डिवाइड कर दिया। जो वाउल्स होते हैं, वाउल्स की गिनती करें, ये तो साउंड है। वाउल्स होते हैं वो 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, आपको पता है सबको, वो जो है 21 होते हैं। ये आपको सबको पता है, ठीक है ना। तो वाउल्स में आपके पास जो है ए आ गया, ई आ गया, आई आ गया, ओ आ गया और यू आ गया। बाकी सब जो है एक वाई भी इसको मान लेते होते हैं इसमें, बट हम नॉर्मली इसको 5 वाउल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स। बट साउंड्स की बात करते हैं, साउंड्स कितने होते हैं? इसको पता है साउंड्स कितने होते हैं? वाउल साउंड कितने होते हैं? वाउल साउंड्स, कंसोनेंट साउंड्स वो कितने होते हैं? आपको लेटर्स तो पता है 26 हैं, साउंड्स टोटल 44 होते हैं। 44 साउंड्स होते हैं टोटल में। और जो वाउल और कंसोनेंट साउंड्स हैं, जो कंसोनेंट है वो 24 साउंड्स होते हैं, और जो इसके हैं वो 20 साउंड्स होते हैं। अब देखो आपके सामने ये जो है A, E, I, O, U, आप बोलोगे वाउल तो 5 ही है, साउंड 20 कैसे हो गए? 4 टाइम्स। बिल्कुल कैसे होता है, मैं आपको एक ऐसे वर्ड जैसे फादर, फादर लिख लिया मैंने, यहां पे लिख लिया डैड, मैनी, ठीक है, विलेज, ठीक है। एक मैंने लिख लिया नदेन। अब इसमें आप देखो, ये जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं ना, ये लेटर जो है, ये इसको आप साउंड के हिसाब से चेक करो। एक लेटर कई तरह का साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, डिपेंडिंग कि वो कौन से वर्ड में आ रहा है, कहां पे आ रहा है। ये जो यहाँ पे जो इसका साउंड है वो आई, फादर,
ये जो साउंड है ए प्रोनाउंस कर रहा है, इसको ए बोला जा रहा है। सो फादर, डैड एंड दिस इज मैनी। बोल बोल के देखना पड़ता है मैनी के, उसमें ढूंढो क्या है उसमें, डैड मैनी। यहां पे देखो क्या है, यहां पे डिफरेंट है, यहां पे है विलेज नहीं है, विलेज नहीं है, इट इज कॉल्ड विलेज। छोटी ई की मात्रा हिंदी में बोलते हैं हम विलेज, उसको छोटी की मात्रा दे देना, ल को छोटी की मात्रा देके कैसे बोलेंगे हम, विलेज। ये ल को छोटी की मात्रा, छोटा जैसे बोलते हैं ई ई ई ई लॉन्ग साउंड है, ई शॉर्ट साउंड है, तो यहाँ पे शॉर्ट साउंड आ गया, तो ए का साउंड बदल गया यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये वो साउंड है जहां से हम ए बी सी शुरू करते हैं, मदेन ए। ये जो ए है ये कहीं नहीं आता। ए फॉर एप्पल, हम ए तो बोल रहे हैं और दूसरा ए कह रहे हैं, ए। आप बात समझो कि जो हम पहला लेटर प्रोनाउंस करते हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में बहुत रेयर है। हम बोलते हैं ए फॉर एप्पल, ए उसको बोलते ए, पर वो प्रोनाउंस कैसे ए, तो डिफरेंट हो गया ना। तो वो जो ए है वो यहां पे आ रहा है, मडेन। मडेन एक ब्रांड भी है कपड़ों का, लेडीज कपड़ों का एक ब्रांड है मडेन। समझे बात को? इसका मतलब क्या है, जो आपके जो वाउल साउंड्स हैं वो एक वाउल जो है कई तरह के साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ वाउल्स भी होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के लिए, थोड़ी सी आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए और चेक करने के लिए कि हम मतलब लैंग्वेज को कितना समझते हैं, तो मैं एक वर्ड लिख रहा हूं आपके सामने, तो कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं। How to pronounce this word? 2-letter word it is. No. N-O, how to pronounce it? No. Yeah. So, got it. You are on the track. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं no. It is not no actually. It is no. No. हम मतलब जब इसको बोले no, तो वो अवेज बन रहा है। No, actually it is the right pronunciation. क्योंकि इसमें ना डिप्थोंग है, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। आगे आपको पहले ये बताता हूँ, इसको भी ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। इसको लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं? गो, गो, गो। It's not go. It's not go. It's go. You can go now. You can go. No. Go. और ये क्या है? It is not wait. It is wait. 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 It is not wait. लोग इसको वेट बोलते हैं क्योंकि इसमें डिप्थोंग है। डिप्थोंग, दो वाउल साउंड्स इकट्ठे जब हो जाते हैं वो डिप्थोंग बन जाता है। तो वो मैं आपको डिटेल में जाने, फोनेटिक्स का पार्ट है, बट आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड जैसे दिखते हैं जरूरी नहीं कि वैसे ही बोले जाते हैं। ये क्या है? हाँ, इसको टेकनी बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेक, टेक, टेक। आप इसको सुनना, आप जब इंग्लिश सुनते हो ना किसी को इंग्लिश जरूर डिक्शनरी डाउनलोड करो अपने मोबाइल फोन पे, वहां पे एक वर्ड लिखो, आपको प्रोनाउंस करके बताएगा, आपको पता लग जाएगा ये टेक है या टेक है। टेक, इसमें डिप्थोंग है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे, एक नहीं है। मैं ये वाला लिखूंगा, इसमें दो चीजें आ जाती हैं। ये वर्ड भी बहुत गलत बोलते हैं लोग, इसमें ये प्रोनाउंसिएशन के इश्यूज नहीं है। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन में एक छोटा सा पार्ट है जिसको डिप्थोंग समझ नहीं पाते बच्चे। ये भी कुछ वैसा ही है। इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो डिप्थोंग है, एक सिल्बिक स्ट्रेस है। सिल्बिक स्ट्रेस सुना है किसने? सिल्बिक स्ट्रेस नहीं सुना, ये भी करेंगे हम, ये भी आपकी स्पीकिंग में ही आता है। तो आप इसको प्रोनाउंस करें कोई अच्छा को कॉन्फिडेंट? Today. हाँ, Today. Today. हाँ, आवाज निकालिए, स्पीकिंग की क्लास है भाई। Today. यहाँ पे क्या है? ये जो है
इसको आप टू बोल रहे हो, इट इज नॉट टू, इट इज Today. today, Today. today, so today I'm on leave, today। आप बात समझो, यहाँ पे ये ट है, इसको सिल्बिक स्ट्रेस बोलते हैं, यहाँ पे वीक है ट। ये जो है डिप्थोंग है, इस पे इसको डे नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डे। डे, come another day, rain rain go away, come again another day। वो डे नहीं होता, डे। सो इट इज टुडे, टुडे, या यस टुडे। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको मतलब जो है बोल बोल के प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। ऐसा बहुत कुछ है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। ओके, सो हम यहाँ पे एक वर्ड लिख रहे हैं, जैसे वॉन्ट हो गया, इसका जो सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होती है, फॉर एग्जाम्पल उसको कई बच्चे गलत प्रोनाउंस करते हैं, ईडी फॉर्म्स। सो वॉन्ट, वॉन्टेड, है ना। वो इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ भी ये इसकी तीन जो है प्रोनाउंसिएशन होती है, तीन। जब ईडी पीछे आ जाता है ना, तो या तो वो बोला जाता है इड, इड, वांटेड, या बोला जाता है ड, वांटेड, या बोला जाता है ट, सिर्फ ऐसा। जैसे LOOKED को कैसे बोलेंगे, इसमें ट बोलेंगे, ट, या इड बोलेंगे, या ड बोलेंगे। इसको लुकेड बोलेंगे, या लुक्ड बोलेंगे, या लुक्ड बोलेंगे। ट नहीं तो फिर यदि इसका उल्टा पुल्टा हो जाए तो COOKED क्या बन जाएगा, कुक्कड़। तो कईयों के लिए कुक्कड़ बन सकता है, तो एक्चुअली क्या है वो कुक्ड। तो हमें साउंड एक्चुअली लेटर्स के हिसाब से साउंड नहीं बने इंग्लिश के, ये जैसे बने हैं, जैसे बोले गए थे, ठीक है, आपको वैसे ही उसको यूज करना पड़ेगा। तो ये कुक्ड, लुक्ड, वांटेड, मतलब इसकी एक अलग एक क्लास होगी, आप आई विल लेट यू नो। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आई विल टेल यू कि कौन से कैसे होते हैं, ठीक है, आई विल लेट यू नो। नाउ दिस इज the time to start practicing